آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ معروف اسلامی اسکالر باجی مظفر حسین، جنہیں سماجی حلقوں میں باجی صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا، کالا کوٹ راجوری میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ 60 برس کے تھے۔ آج میرے یعنی محمود خواجہ اور ڈیسک سے مرتضیٰ اکثر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں باجی سید مظفر حسین شاہ صاحب کی خدمات پر ایک رپورٹ۔ اس رپورٹ کو آپ تک پہنچانے میں خاص کردار ادا کیا ہے صحافی اویناش آزاد نے۔ باجی سید مظفر حسین شاہ صاحب جو اپنی مذہبی مہارت اور تقرری مہارت کے لیے مشہور تھے، سیاست سے بھی کافی عرصے سے وابستگی تھی۔ وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی مفتی محمد سعید اور پی ڈی پی کی موجودہ چیئرمین محبوبہ مفتی کے ساتھ بارہا دیکھے گئے۔ جموں کشمیر کے کئی سیاسی سماجی شخصیت سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں نے باجی سید مظفر حسین شاہ صاحب کے انتقال پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور سوگواران خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر پی ڈی پی کی چیئرپرسن محبوبہ مفتی نے لکھا، کالا کوٹ کے باجی سید مظفر صاحب کے افسوسناک اور اچانک انتقال کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک عظیم روحانی پیشوا تھے اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ ان کے اہل خانہ اور خیر خواہوں سے تعزیت کرتی ہوں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لاکھوں لوگوں کے مسیحا اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے باجی دربار کے باجی صاحب تھے باجی مظفر احمد شاہ جی، جن کا 18 جون کو انتقال ہو گیا تھا اور 19 جون کو انہیں دفنایا گیا تھا۔ یہ ان کی درگاہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ آرام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ماننے والے وہ بھی جو ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی درگاہ ہے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر، ان کے استانہ کے ہیں جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ان کی جگہ گدی نشین ہو رہے ہیں، جنہیں اب باجی بشارت حسین شاہ کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے۔ ہم اس وقت غم کی گھڑی میں ہیں کہ وہ 62 یا 63 سال کی ایج میں ہم سے وہ جدا ہو گئے ہیں۔ بڑی کم ایج ہے، کوئی اتنی بڑی ایج نہیں ہے اور ہمیں اس چھوٹی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں۔ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ جس طرح ہمارے والد صاحب نے اس دربار کو چلایا، اپنے مریدین کے ساتھ محبت کی، لوگوں کے ساتھ پیار کیا، غریب کے ساتھ مدد کی، بیمار آیا اس کا علاج کیا، کسی بھی چیز کے لیے کوئی آیا اس کو مطلب یہاں سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ تو ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ جس طرح ہمارے والد صاحب نے لوگوں کی مدد کی، ہم بھی اس طرح چلیں اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں کام کریں۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب تجدید عالم دین اور روحانی شخصیت تھے۔ باجی صاحب صرف جموں کشمیر کے ہی نہیں بلکہ بیرون ریاست اور بیرون ملک بہت مقبول تھے اور ان کے انتقال سے قوم اور خطے کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو مستقبل قریب میں پورا نہیں ہو سکتا۔ جناب، میرا نام سید رحمت شاہ ہے، ملن گام بانڈی پورہ کے رہنے والے ہیں ہم۔ تو ہم 7 بھائی ہیں، سب سے بڑا بھائی ان میں سے میں ہوں۔ مظفر جس کا انتقال ہوا ہے ابھی چند دن پہلے، یہ تقریباً مجھ سے 5ویں جگہ چھوٹے تھے، 5ویں جگہ۔ ان سے بڑی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہم، اور 5ویں جگہ یہ چھوٹا تھا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ان کے دن پہلے ہو گئے۔ اے مجھ سے چھوٹا، میں نے اس کو گود میں اٹھا کے پالا ہوا ہے۔ تو ہم بیسیکلی بانڈی پورہ ملن گام کے رہنے والے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ سے ہمارا تعلق ہے، خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی سلسلے سے ہیں ہم۔ ہمارے دادا حضور کی درگاہ ہے وہاں ملن گام بانڈی پورہ میں، اور جو ہمارے پردادا ان سے جو بڑے بزرگ ہیں پہلے ایران سے آئے ہوئے ہیں، ہم ایران مشہد سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پردادا کی زیارت جو ہے وہ
अलई में है। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला जिस शख्स को पसंद कर लेता है अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, उसके लिए मुकाम भी पसंद कर लेता है और जगह भी पसंद कर लेता है। हर बच्चे का बचपन, लड़कपन, इसमें एक कुछ आदत होती हैं, लेकिन बचपन से लेके इस वक्त तक, यानी मैं पिछले 3 महीने से तकरीबन यहाँ साथ ही में रहा हूँ, मैंने कभी कोई ऐसी बात इस भाई के अंदर नहीं देखी जो फालतू नाम की हो। निहायत सादगी जिंदगी, बचपन से कोई शरारत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जिसमें बच्चे झगड़ा करते हैं, मार पीट होती है, लड़ाई होती है। वो निहायत इसका बचपन बड़े सादगी से गुजरा है, और फिर इस वक्त तक सादगी में इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं आती कि इंसान के किसी वक्त कोई झगड़ा किया हो, किसी को शरारत की हो। कभी किसी के साथ गुस्से से तो बोलते नहीं, कितनी बात हो जाए हंस के जवाब दे देना, ये एक आदत थी। मैं अपने भाइयों के टोले से लेकर, अपनी औलाद, बच्चों से लेकर, मुजफ्फर साहब की औलाद से लेकर जितने लोग इनसे वाबस्ता हैं, उनसे यही बात कहूँगा कि ये हमारे एक घर का सदमा या दुख नहीं है, ये सब आलम के लिए ये दुख है। हर घर में तकरीबन आंसू हैं, हर घर में लोग रोते हैं। तो ऐसी घड़ी में मैं ये कहता हूँ कि हम सबको एक मुट्ठी बंध के रहना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है। वो लोग जो इस दरबार से मुरीद रह का ताल्लुक़ रखते हैं, जिस लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, बस मेरी उनसे यही अपील है कि वो हमारे साथ इस वक्त इस दुख में कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ये कारवां चलता रहेगा, ये आगे से भी ज़्यादा चलेगा। जिस वक्त पहले यहाँ आया था तो एक मुजफ्फर था, अब उसके 7 मुजफ्फर हैं यहाँ। इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि ये कारवां उससे भी अच्छा चलेगा, सिर्फ हमें आपस में इत्तेफाक की ज़रूरत है। सोगवारान ख़ानदान से इजहार यकजहती करते हुए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये नाकाबिल तलाफ़ी बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए और बाजी साहब का घर, परिवार और उनकी औलाद हमेशा कौम और खित्ते की खिदमत अंजाम देते रहें। आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह जो है असल में यहाँ पर जब बाबा जी घर से निकले थे, ठीक है, तो उन्होंने जो हमें बताया है, उस वक़्त उनके पास सिर्फ एक कपड़े का सूट था, बाकी कुछ नहीं था। तो वहाँ से निकले हैं इस जगह की तलाश के लिए। इस जगह में पर पहुँचने के लिए कम से कम भी, जब जो हमने सुना है, उनको 7 साल लग गए। 7 साल तलाश करने के बाद यहाँ पे पहुँचे। इस जगह पर, ये जो जगह बंद की हुई है, इसको बोलते हैं बैटिक शरीफ, और इस जगह पर ज़हरी तौर पर इनके ताया थे यहाँ पर। जब इनके दादा का वफ़ात हुआ, उस दिन यहाँ पे इनका जो टेंट है यहाँ पे लगा हुआ था। इसी जगह की तलाश के लिए ये निकले। 7 साल के बाद उनको जो बाजी साहब हैं यहाँ के कहना, जिनके मज़ार पाक इधर बना है, उनको 7 साल के बाद ये जगह मिली है। 7 साल के बाद यहाँ पे पहुँचे थे, तो इस जगह को तलाश करके यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद ज़ाहरी तौर पे तो हम कहते हैं कि ये ऐसी जगह, लेकिन बातिनी तौर पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके दादाजी और बड़े बड़े औलिया इकराम ने बैठ के कुछ फ़ैसले किए हुए, इसलिए उन्होंने हमें हुक्म दिया था इस जगह को बंद कर दो, इस जगह में कोई नहीं अंदर जाना चाहिए। अगर कोई अंदर जाएगा तो कल नुकसान पहुँचाएगा, नुकसान उठाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं है। साहब का तुरबत पाक बना हुआ है सामने। ये जगह पहले एक ऐसी तरह से टेकरी थी, तो जब 2013 में यहाँ पे रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड यहाँ पे पहुँची है, उसके बाद मशीन वगैरह लगा के इन्होंने ख़ुद अपने पैसे से लगा के ये जगह जो कंप्लीट प्लान कर दी थी। तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बाबा जी ने ख़ुद यहाँ पे बता दिया था कि मेरा लास्ट का जो मुकाम है वो यहाँ पर बनेगा, और मेरा लास्ट का मुकाम जो है यहाँ पर बनाना है आपने, ठीक है। तो इसलिए ये मुकाम जो है
उस वक्त खुद हयात में उन्होंने बता दिया था। ये आप उनकी दरगाह देख सकते हैं मेरे पीछे। जिस दिन बाजी साहब की डेथ हुई है 18 जून और 19 जून जब उनको दफनाया गया है, तो जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको तो छोड़िए, दूर तक ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों पे भी पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जो बाजी साहब के डिसाइपल थे, जो उनके मानने वाले थे, जो उनके मुरीद थे, वो लोगों के मसीहा थे। और अचानक अभी उनके परिवार के सदस्यों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अचानक उनकी डेथ हो गई, पता भी नहीं चल पाया। वो लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने उस दिन अपनी बहन को थोड़ी देर पहले अलविदा किया जो जोरी रहती हैं, और उसके बाद दरबार लगा हुआ था, वो दरबार में भी लोगों से उन्होंने बातचीत की और अचानक फिर वो अंदर गए और उसके बाद जो है वो इस दुनिया से चल बसे। मुझे जब ये हॉस्पिटल में पहुँचे स्टोरी डाली, किसी ने डाली जी, तो जब हमने वो स्टोरी देखी तभी फ़ोन किया, पता चल गया जी। तो हमारे घर में खाना पका हुआ था जी 7 बजे का टाइम था। जी जी। तो फिर हमको कोई मालूम नहीं किसने खाया, कहाँ गया, क्या हुआ। अपना जब सर का साया खो जाए तो फिर पता ही नहीं है। हमने तो ऐसे जब दिन में अचानक अंधेरा पड़ जाए, सूरज छुप जाए, फिर नजरी कुछ नहीं आता। इस वीडियो में थोड़ी कोई एडिटिंग करना चाहता था, मुझे कुछ बातें जो भूल गई थी, इसलिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे इस दरबार पे किसी नस्ल या किसी भी मज़हब के बारे में आज तक कभी बाबा जी ने ये नहीं बोला है कि किसी मज़हब के बारे में, किसी मज़हब महफूज मज़हब यानी मुसलमान ही आ सकते हैं, हिंदू नहीं आ सकते हैं या दूसरे मज़हब के नहीं आते। यहाँ पर सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सब बराबर हैं। दूसरा नंबर पर बाबा जी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो मेहमानों में आते थे तो मेहमानों में उन्होंने सबसे पहले जो है अहले सादात जो सैयद हैं, सैयद पाक ज़ात हैं, उनको बुला के उनको फ़ारग करते थे, चाहे वो 10 हों, 15 हों या 20 हों। बाजी साहब का इंतकाल के बाद लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ रियासत भर से बगैर मज़हब मिलत हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते थे, जो बेसहारा, यतीम, बेवा, गरीब और जिनको डॉक्टर लालाज कर देता था वो लोग यहाँ आते थे, शिफा होकर जाते थे। जिस किस्म की भी मर्ज़ होती थी वो ज़रूर यहाँ से फैज़याबा होकर जाता था। बाजी साहब के जाने के बाद पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस रजौरी पुंछ में तमाम कम्युनिटी, आल कम्युनिटी, मतलब किसी भी को पर्सनल के मैं नहीं कहूँगा कि किसी ज़ात से, तमाम ज़ातों में से सब लोग इस चीज़ का दुख अज़ाज़ कर रहे हैं कि बाजी साहब की वजह से हमें बहुत अफसोस हुआ है और दुख हुआ है। और बाजी साहब की शख्सियत का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बाजी साहब के यहाँ लंगर था, यहाँ गरीब, मस्कीन, यतीम, बेसहारा लोग आते थे। जो यहाँ लंगर चलता है आप यकीन नहीं करेंगे, हम किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे हमारे देश में ऐसा लंगर नहीं है। यहाँ हफ्ते में 2 बार मीट दिया जाता है, संडे को शाम को और वीरवार को, तो हर हफ्ते में तो लंगर सुबह शाम चलता है, हर कोई लंगर खा सकता है। तो भाई साहब का बहुत बड़ा सदमा है, दुख है मुझे, और ज़ाती तौर पर तो है ही है और सबको है। बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो 1993 से बाजी साहब के साथ रहे और 2003 से रेगुलरली वो जहाँ पे आ रहे हैं। हम उन्हीं से थोड़ी बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है जी जी, मैं रजौरी का रहने वाला हूँ। और कब से आप इस जो बाजी साहब का दरबार है इससे जुड़े हुए हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम पे 1993 में यहाँ पे आया था जी। मेरे घर में मेरे 4 बंदे जो हैं, मेरी 4 फूफियाँ और 2 चाचे जो हैंडीकैप थे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको लेके यहाँ पे उनके पास आया था जी। तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ? उनसे ये इतना फ़ायदा हो गया कि जो उनको पहले हम हफ्ते के हफ्ते डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, उनको जोड़ जो हैं वो दर्द करते थे, चल फिरने में भी उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी, इतना कि बाथरूम तक जाने के लिए वो खुद बाथरूम नहीं थे जा सकते थे। तो उसके बाद में वो खुद बाथरूम भी जाने लगे और थोड़ा बहुत वो आगे पीछे चलने भी लगे जी जी। तो और कुछ बताइए इस दरबार के बारे में आप। सर यहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी की सुनी सुनाई बातों से नहीं है, मैंने आंखों से देखा है। कुछ बंदे ऐसे भी यहाँ पे आए हैं कि जिनको लास्ट स्टेज कैंसर हुआ है, तो अल्लाह के करम से, नबी पाक के सदक़े, पैगंबर पाक के सदक़े और बाबा जी की दुआ के करम से अगर उनको शिफा यहाँ से नसीब हुई है। हर किस्म की बीमारी, चाहे वो
कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, और चाहे कोई भी बीमारी ले लो। तो कई ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो चंडीगढ़ से वापस आ गए हैं और चंडीगढ़ वाले डॉक्टरों ने कहा है कि ले जाओ घर में इनको, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या 10 दिन या 15 दिन रहेंगे। कहा ये भी जाता है कि बाजी साहब लोगों को दवाइयाँ भी देते थे, फॉर्मेलिटी के लिए वो छोटी मोटी दवाई देते थे, जैसे पैरासीटामोल हो गई, जैसे जो आजकल डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो प्रिपेयर ही नहीं करते उस दवाई को, यानी मामूली सी दवाई समझते हैं इससे क्या होगा जी। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर एक कम्बीफ्लेम टेबलेट थी, कम्बीफ्लेम दर्द के लिए टेबलेट है, तो ये कम्बीफ्लेम टेबलेट किसी को अगर देते थे तो उसको ये देख के नहीं देते थे कि ये इसको दर्द के लिए देनी है। किसी वक्त कुछ ऐसा भी उनके पास, मैंने कुछ ऐसा भी देखा है कि यानी वो किसी भी बीमारी के लिए दी और वो बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी, यानी कि एक इसी के लिए दर्द जो की टेबलेट है, अगर दर्द के लिए दी है वो ज़रूरी नहीं दर्द के लिए काम आई है, और कई बीमारियों पे काम आई है। मिसाल के तौर पे दिया है मैंने ये कम्बीफ्लेम का नाम, बाकी और भी ऐसी छोटी मोटी दवाई जो दे दिया करते थे। बाकी उनके पास जो जड़ी बूटी वाली है, तो जड़ी बूटी की दवाई वो ख़ुद यहाँ पे तैयार करवाते थे। कुछ सामान जम्मू से मंगवाते थे, कुछ सामान हम जम्मू से लेके आते थे, कुछ सामान जो है वो कश्मीर से, पहाड़ियों से बकरवाल लोग जाते थे, वहाँ से उनको बोलते थे कि फ़लानी जड़ी जो है वो मुझे ला के देनी है, और वो बहुत कीमती जड़ी थी, और वो जड़ी उन्हीं को पता है किस काम में आती है, कितनी मकदार में डालते थे, कितनी मकदार में नहीं डालते थे। वही जड़ी बूटी वाली दवाई सबसे ज़्यादा जो है जड़ी बूटी वाली वो दवाई देते थे। मुझे एक बात बताइए, जब बाजी साहब का इंतकाल हुआ उससे कितनी देर पहले आप उनसे मिले थे, मतलब कितने दिन पहले आप मिले थे? जब आप यहीं पे थे या कहीं बाहर थे? मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ, और अल्लाह ताला के नबी और पंचतन पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैं 1993 में आना जाना शुरू किया है, तो जिस वक़्त जनाबों ने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा तो मैं उनके साथ में था, और मैं उनके साथ में था तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने मुझे अपने पास किसी फ़ोन करवा के अपने पास बुलवा लिया था। तो उधर बैठे थे, बातें कर रहे थे सोने तरीके से, कुछ किसी किस्म का उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया कि मुझे किसी तकलीफ़ है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं। ये यानी एक किस्म का ऑटोमेटिकली अचानक ही उस वक़्त हम पर एक गोला पड़ा है। जब उन्होंने दुनिया को अलविदा का टाइम था, उस वक़्त अचानक ही हमारे पर ये हुआ है।